نبیوں کا امام کھڑا ہو جاتا ہے، جس کی ابتدا کے لیے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام پیغمبر جو ہے حاضر دربار ہوتے ہیں اور ابتدا کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آج وہ کون سی خوش نصیب تھی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ تھی۔ عظمت والدین زندہ باد، عظمت والدین، عظمت والدین، نعرہ تکبیر۔ وہ میری ماں رضائی ماں دائی حلیمہ تھی، دائی حلیمہ تھی، جس کو لوگوں نے تانا دیا تھا اور کہا تھا، اے حلیمہ تجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے، جب سے یہ نوزائید جو ہے بچہ تیرے یہاں آیا ہے تو رات رات بھر جو ہے چراغ جلاتی رہتی ہے، روشنی کرتی رہتی ہے، یہ مہنگائی کا وقت ہے، اتنا تیل کہاں سے لاتی ہے، رات بھر چراغ جلاتی ہے، ایمان اپنا جواب دیتی ہے، عرض کرتی ہے، لوگوں فرماتی ہے، اے لوگوں میں چراغ نہیں جلاتی، ارے جب سے یہ بچہ آیا ہے، جب سے یہ نومولود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیا ہے، یہ آمنہ کا شہید آیا ہے، تب سے تو میں نے چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، چراغ جلانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ ارے اس کے نورانی چہرے کی روشنی ہے جو اندھیرے کو دور کر کے میرے پورے گھر کو روشن کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ حلیمہ، وہ داعیہ، اس کے احترام کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں معلوم نہیں ہو سکا وہ آنے والے خوش نصیب کون ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ داعیہ کا جو ہے نام بتایا، چونک گئے، یا رسول اللہ یہ تو حقیقی والدہ نہیں ہے، یہ وہ والدہ نہیں ہے جس نے آپ کو جنم دیا ہو، جس کے ذریعے سے آپ جو ہے اس دنیا میں تشریف لائے ہو۔ یا رسول اللہ، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جس ماں نے آپ کو جنم نہ دیا ہو، جس ماں نے آپ کی پرورش میں جو ہے وقت گزارا ہو، 2 سال گزارے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ والدہ جس ماں نے آپ کو جنم نہ دیا ہو، یہ صرف دودھ پلانے والی رضائی ماں ہے، جس کا احترام یہ ہے تو اس ماں کا مقام کیا ہوگا، جس نے 9 مہینے جو ہے سکم میں رہ کر جو ہے آپ کی پرورش کی ہو، آپ کو پیدا کیا ہو، آپ کو جنا ہو، یا رسول اللہ اس کا احترام کیا ہوگا، اس کا احترام کیا ہوگا۔ اس لیے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مقام تو بہت بڑا ہے، اس کے قدموں کو بوسہ دینا ایسا ہے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا، جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا ہے۔ جانتے ہو اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ ساری دنیا سے حج کے لیے آنے والوں، ساری دنیا سے حج کے لیے آنے والوں، حج کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتے ہو، دور و دراز کا سفر طے کرتے ہو، بڑی صعوبتیں، بڑی تکلیفیں برداشت کرتے ہو، بھوک و پیاس کو برداشت کرتے ہو، ہر طرح کی جو ہے اذیت کو سہن کر لیتے ہو۔ اے لوگوں اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حج کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ میرے ارکان کو قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ رمضان جماعت کو قبول فرما لے، وقوف عرفہ کو قبول فرما لے، تمام دعاؤں کو قبولیت کا جامع عطا فرما دے۔ ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو اس لیے برداشت کیا جا رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے دور و دراز کا سفر طے کر کے ایک حاجی خانہ کعبہ تک پہنچتا ہے، لیکن جو ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ آیا اللہ نے اس کے حج کو قبول کیا ہے یا نامقبول کر دیا ہے، اس کے منہ پر اس کے حج کو مار دیا ہے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا مولا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों, माँ का मकाम क्या होता है, माँ की अजमत को तुम क्या पहचानोगे? एक शख्स 7 मरतबा धूप में जो है अपने कांधे पर सवार करके अपनी वालिदा को जो है हज कराता है, तवाफ काबा कराता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, क्या मैंने माँ की खिदमत का हक अदा कर दिया? मेरे आका ने फरमाया, अभी तो तूने एक रात का हक भी अदा नहीं किया है। तो तकलीफ से के तेरे पेशाब की जगह पर अपने आप को लिटाकर अपनी जगह पर सूखे में तुझे सजा कर है, उसने उस रात को गुजारा है, उस रात का भी हक अभी तूने नहीं अदा किया है। बेशक बेशक ये वो मर्तबा मकाम है। या रसूल अल्लाह, किस तरह से हज कबूल हो? आपने फरमाया है, लोगों खुशा नसीब हैं वो लोग, खुशा नसीब हैं वो लोग जो माँ के वालिदैन अपनी माँ के चेहरे को देखते हैं, अपनी माँ की चेहरे को देखते हैं। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी शख्स ने एक मर्तबा मोहब्बत और शफकत की निगाहों से अपनी माँ के चेहरे को देखा, अल्लाह ताला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाया। हज मबरूर किसे कहते हैं पता है? हज मबरूर कुछ ही लोगों को या मुख्तसर किस्म के लोगों को जो है हज मबरूर नसीब होता है। वो हज जो 100% कबूलियत रखता है, कबूल करता है अल्लाह तबारक व तआला, ऐसे हज को हज मबरूर कहते हैं। तवाफ करने वालों, दूर दराज का सफर तय करने वालों, लाखों रुपये खर्च करके मेरे घर के पास आने वालों, सुन लो, जानते हो माँ का मकाम क्या होता है, माँ का एहतराम क्या होता है, माँ की खिदमत क्या होती है, माँ की मोहब्बत क्या होती है। अगर कोई मोमिन शफकत और मोहब्बत की निगाहों से अपनी माँ का चेहरा देख लेता है, अल्लाह ताला उसे हज मबरूर का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छे मबरूर अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये वो पाक साथ है जिसने जो है अपनी इबादत के हुक्म के साथ साथ माँ बाप को जोड़ा है, माँ बाप को जो है शामिल किया है। बीच में और कोई हुक्म नहीं है, बीच में और किसी इबादत की बात नहीं है, बीच में किसी और फर्ज का हुक्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है तो डायरेक्ट, इसलिए कि हकीकी मानों में परवरिश करने वाला, पैदा करने वाला खुदा ताला है और इस दुनिया में परवरिश करने वाले उसके वालिदैन होते हैं। ये मजाजी रब है, हकीकी रब रब्बे कायनात है जो अपने बंदों पर रहम करम फरमाता है और उन्हें दुनिया में से आके वजूद अता फरमाता है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसीलिए फरमाया गया तुम्हें मालूम नहीं, ऐ लोगों, वंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब फ़असद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। जानते हो मरना हर शख्स को बरहक है, मौत से किसी को इनकार नहीं हो सकता है, मौत से किसी को राहे फरार नहीं है। मौत का मसला बहुत पुराना है, मौत का मसला बहुत पुराना है। हजरत आदम से लेकर और उनसे भी पहले जो मखलूक इस दुनिया में आई, उससे लेकर आज तक और आज से लेकर कर सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा और दूसरों की मौत से बाद वालों को जो है इस बात का सबक मिलता रहेगा, इस बात की नसीहत हासिल होती रहेगी कि मौत आसान भी होती है, मौत मुश्किल भी होती है, आसान भी होती है। मेरे आका फरमाते हैं, मोमिनों घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। जितने आज मैंने इजराइल को हुक्म दे दिया है, इजराइल मुंह निकालते हो तो तकलीफ होती है, इजराइल मुंह निकालते हो तो शिद्दत महसूस होती है। या रसूल अल्लाह, आप तो रूहे कायनात है, आप तो सैयदुल इंस वल जिन्न हैं। ए अल्लाह के हबीब, आपको कैसे तकलीफ? आपका मिजाज बड़ा लतीफ है, आपका जिस्म बड़ा नाजुक है, इसलिए आपको की रूह के निकलने में जो है आपको तकलीफ महसूस हो रही है। वरना मेरी जुर्रत, मेरी हिम्मत के आपकी रूह के निकालने में मैं किसी भी तरह की कोई सख्ती का इस्तेमाल करूं, मैं आपके साथ में कोई ज्यादती करूं? या रसूल अल्लाह, मिजाज बड़ा लतीफ है, बहुत नाजुक है आपका जिस्म, इसलिए आपको दर्द महसूस होता है।
इसराइल क्या हर एक की रूह निकालते हो, हर एक की रूह को निकालते हो, तो इस तरह का मामला पेश आता है, इस तरह की तकलीफ और शिद्दत होती है। या रसूल अल्लाह, ये तो इसका असर अशीर भी नहीं है, बहुत सख्ती के साथ में मैं जो है उसकी रूह को निकालता हूँ, इस तरह से निकालता हूँ जैसे एक रेशमी कपड़ा जो है भिगोकर अगर टहनी को ऊपर दरख्त वाली टहनी के ऊपर डाल दिया जाए तो उसका ताना बाना जिस तरह से अलहदा हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से जो है रूह के निकालने में शिद्दत महसूस होती है। जिस्म के एक एक रंग से, एक एक रंग से जब रूह निकलती है तो वही जानता है जिसकी रूह निकलती है, उसी को पता चलता है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर ऐ मलकुल मौत, ऐ इज़राइल, जितनी भी तकलीफ और मेरी उम्मत के साथ में पेश हो मौत के वक्त रूह के निकलने के वक्त, उस तमाम तकलीफ को तन्हा मोहम्मद रूह के निकालने में आजमा लो, ताकि किसी की रूह के निकलने में कोई तकलीफ ना हो। अल्लाहु अकबर। ये है उम्मत का ख्याल, ये है उम्मत का दर्द, ये है उम्मत की मोहब्बत कि मैं उनकी रूह के निकलने में कोई तकलीफ हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए तन्हा मोहम्मद अरबी की रूह के निकालने में जो है इसे आज़मा लो। या रसूल अल्लाह वादा करते हैं कि हम इस तरह से उनकी रूह को निकालेंगे जिस तरह से खमीरी आटे में से पान निकाल लिया जाता है और पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया उसी रहमत का सदका है, उसी बहसत का सदका है कि मोमिनों की रूहें आसानी के साथ निकल जाएंगी, पता भी न चलेगा कि कब मलकुल मौत आया और कब रूह लेकर निकाल गया। अल्लाह ताला हर मोमिन की ऐसी मौत हो, हर मोमिन की ऐसी मौत हो। हमारी मरहुमा जो है जन, उनकी रूह भी कुछ इस तरह से पता भी न चला, एक शब्द भी कहने का मौका न मिला, न तो पानी पिलाने के लिए भी एक घूंट उनके हाथ में डाला जाए, पता ही नहीं चला कि किस तरह से इस मरहुमा की इस खिदमत खल्क करने वाली इस खातिमा की रूह को अल्लाह ने अपने पास बुला दिया। ये उसका करम है, उसका एहसान है। हर किसी को ऐसी मौत नसीब नहीं होती है। अल्लाह जिसे चाहता है अपने महबूब के सदक़े में ऐसी मौत अता फरमाता है। अल्लाह ताला हर मोमिन की रूह इसी तरह से मारे। अल्लाह ताला हर एक को कलमे के साथ अपनी बारगाह में बुलाए और जब पेशी हो तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह ज़ैबा का दीदार नसीब हो जाएगा। हजारों तकलीफ होगी मगर पता न चलेगा, इसलिए कि हमारा ज़हन और हमारा शऊर अपने आका के हुस्न दीदार में खोया हुआ होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि रूह के निकलने में क्या तकलीफ हुई है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का करम है, फज़ल है। अल्लाह ताला जैसी मरहुमा हज्जानी जो है बीवी बहन को अल्लाह ताला ने जो है रूह के निकलने में जो आसानियाँ पैदा अता फरमाई, अल्लाह ताला हर मोमिन को नसीब फरमाए, हर शख्स को नसीब फरमाए जो शोक वाली और जो मातम की चादर तनी हुई है, अहले खाना पर जो है जुदाई का सदमा लाहिक हुआ है, अल्लाह ताला उसे आसान फरमाए, उस गम को दूर फरमा दे, ऐसी खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला जो है उसके सदक़े में तमाम आने वाली उन तकलीफों को भूल जाए, आमीन। सबको राह हिदायत अता फरमाए, आमीन। नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान और इस्लाम की ज़िंदगी के साथ खासकर अपने वालिदैन खुश नसीब हैं, रहमत वाले वो लोग हैं जिनकी माओं का साया उनके सरों पर साया फिल्म है, जिनके वालिदैन का साया उनके सरों पर तना हुआ है। अल्लाह ताला उसके सदक़े में न जाने कितनी तकलीफों को जुदा फरमा देता है, कितनी मुसीबतों से जो है उन्हें आसानियाँ दे देता है, कितने खतरात से जो है उन्हें जो है आसानी पैदा फरमा देता है। वो अल्लाह का करम है, उसका एहसान है कि वालिदैन की दुआएं अपनी औलाद के हक़ में ऐसी होती हैं जैसे पैगंबर की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। अल्लाह ताला जो है उनकी दुआओं को कभी टालता नहीं है। अल्लाह ताला ईमान इस्लाम के साथ हम सबको जिंदगी अता फरमाए और ईमान इस्लाम पर जिंदगी
کا خاتمہ فرمائے بوقت موت ہماری زبانوں پر جاری فرمائے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ احمد چاہ احمد سید احمد کو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب یا رسول اللہ حشر میں
सदा मैं आजिज़ा मेरे बुजुर्गों, इधर बड़ौदा एतराफ के गांव से, चांदना से, हिम्मतनगर से, मेघरज से मेरे अजीज जो तशरीफ लाए हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी माँ के तसल्लुक में अल्लाह मुझे और आप सबको हिदायत फरमाए। मेरी नफिसों को मौला मेरी माँ के सदक़े में माफ़ फरमाए। और सैयदा बीबी साहिबा मदीनिया के साले सवाब के लिए 4 कुरान शरीफ मुफ्ती नज़ीर साहब जम्मू दारुल उलूम बनाते फातिमा की तरफ से, 3 कुरान शरीफ मुफ्ती मुज़फ़्फ़र दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा जम्मू से, 5 कुरान शरीफ हाफिज जुनैद गुलाम नबी की तरफ से, 2 कुरान शरीफ हाफिज वजीरुद्दीन बदरुद्दीन की तरफ से, 1 कुरान शरीफ मोहम्मद आसिफ अनवर हाजी बॉम्बे वालों की तरफ से, 2 कुरान शरीफ नूरजहां मेघरज वालों की तरफ से और 5 कुरान शरीफ इमरान पांड्या राजस्थान वालों की तरफ से टोटल 21 कुरान शरीफ की तिलावत की गई है और 41 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी गई है, 500 दुरूद तुंजीना पढ़ा गया है, 111 मरतबा दुरूद ताज पढ़ा गया है। और मैं जब से लेकर अभी तक तिलावत कुरान, दुरूद ताज और दलाइलुल खैरात की जो तिलावत करता हूँ, ये तमाम सवाब मैं हज़रत शेर गुजरात से अर्ज़ करता हूँ कि कोई साल मेरी वालिदा मुहतरमा को कर दे। इस मौके में जो पढ़ा गया है कुरान पाक पढ़े गए, दो में पाक पढ़े गए, दो में थोड़ी देना पड़ेगी और अजीज जमालुद्दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ा है उसको अपनी बारगाह में मौला हस्तियों को जितने को खताओं को माफ फरमा को कबूल फरमा। सही ख्याल के वसीले से इसका इशार सवाब हम करते हैं। सरकार सरवार कायनात फखरे मौजूदात आकाए नबी रसूल हाकिम के दरबार में आने सामने नजर फरमा। पैगंबर आज़म ने वही काम करके बताया को नजर फरमा। अंबिया और हुसैन के माहिर के रसा को नजर फरमा। खलफा अरबा खलफा में चौदह के बना चौदह को नजर चौदह हुए सुल्तान चौदह सैयद नबी रहमत सैयद चौदह सैयद रहमत में होते हैं और 72 किया गया माहिर के रसा को नजर फरमा। सरकार बगदाद कौसुल जीना कुतुबुल इबाद कौसुल बिलाद कुतुबुल कायनात कौसुल मौजूदात कुतुबुल कौनैन कौसुल सकलैन दस्तगीर बेगना चाराई बेचारगा हम सबीरे कारवा सैयदना शेख के कादिर जिलानी के माहिर के रसा को नजर फरमा। आपके वालिदैन आपके मुस्लिम के बच्चों के लोगों से जवाब पूछा। सरकारी फैयाज अली नवाज मोइन बिल्ली अजमेरी अपनी सज्जन की रवानी के रसा को नजर फरमा। इनके वालिदैन के पेरे मुस्लिम और इनके बच्चों को लोगों का जवाब पूछा। मुतक़िन बख्तियार का इंसान मंदिर महबूब लाई सूर्य के बिन अफ्ताब रागोन कोली सकल अंदर दादा के हयात करंदर लाल फतह के अंदर नाट्य बसले में सकल अंदर हजरत महमूद आलम को के कारण हजरत दरियाई दूल्हा और आपके सत्य आला सैयद अली शरीफ के अंदर के वाहिद को साहब को के पूरे मुझे के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। ताकत से जाहिर है के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। हजरत शाह हजरत फुलकान हजरत कुरानुद्दीन के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। वयुद्दीन साली सल्लल्लाहु कोऑर्डिनेटर के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। हजरत बादशाह बाबा दरबार आबिदीन के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। हजरत लोकजी बाबा ने रहमतुल्लाह के वाहिद को साहब का जवाब पूछा। पानाते रसूल हाशिमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकद्दस तरीन परंदी और सरकार के तसद्दुक में मरहूम अबीर वाली सैयदा हज्जल बीबी बानी की मफल फरमा। जवारे करने में जलियता फरमा। करम करम सल्लल्लाहु फरमा। खैर कराए कराए करम फरमा। साफ करते मौला छोटे छोटे सबीना माफ करते मौला बड़े बड़े कबीरा। खराबियों को खत्म करते मेरे खालिक तौबा न हो जल्ला मिन तालिक। तेरे ख्याल से खाली ना हो ख्याल मेरा मेरे ख्याल में लतीफ जलाते वाले अल्लाहुम मुस्लिहा और रहमहा सकरा सकरा सलाम अलैहि व सल्लम नहीं सलाम कौलन व रसूल नहीं अल्लाहुम
كلمات المصطفى والكافة المصطفى وبهاء المصطفى ولقاء المصطفى وبرهان المصطفى وحجة المصطفى وسلام المصطفى وسلام المصطفى وشكر المصطفى وسلم المصطفى وصلاة المصطفى بخلق مرتبها على القضايا المصطفى المرتضى فمناهما والفاطمة تعالى لما قوموا کے کمال دی اس کی دعا کے بچے کی آئی حکیمت ڈال دی حدیث پاک میں ماں کی حدیث ڈال دی جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں ڈال دی سورۃ الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا